पंजाब की करेंगे, जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले पंजाब के सीएम भगवंत मान। एनएचएआई से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। पंजाब की सड़क सुरक्षा बल पहल की जानकारी दी तो भवानीगढ़ स्थित ओवरब्रिज को लेकर हुई चर्चा। जालंधर होशियारपुर सड़क कार्य को लेकर भी बातचीत हुई। नितिन गडकरी ने काम जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਅਫਸਰ ਟੀਮ ਸੀਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਸੁਝਾਅ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ। ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਵੱਟ ਨਾਲ ਵੱਟ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਪਰ ਰੇਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕ੍ਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸੜਕ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬਣਨ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਣ। ਸੋ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਕੌਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈਵੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, 에ਅਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਾਈਵੇ ਰੁਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੰਮੂ ਕਟਰਾ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਟਰਾ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਟਰਾ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੱਟ ਨਾਲ ਵੱਟ ਸਾਂਝੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾ, ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਮੌਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ MP ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾਇਆ ਸੀ ਡਾਟਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਗਏ, ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ SSF ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। SSF ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਅਰ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਖੜ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ
ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਐਸਐਸਐਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 14 ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 52 53 100 ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਖਮੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ चाਹੀदा होया ਅਸੀਂ हाजिर हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल, बीबीएमबी को लेकर आपने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को, काफी बड़ा मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, बीबीएमबी को लेकर क्या कहना चाहिए? ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਪਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੜਕੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਐਮਪੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਸਹੁੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਪਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ जो ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। तो नितिन गडकरी से ये मुलाकात पंजाब के सीएम भगवंत मान की। और देखिए इस दौरान एनएचआई को लेकर कई विषयों पर चर्चा की गई। हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, देखिए पंजाब के सीएम भगवंत मान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है पंजाब के लिए, क्योंकि एनएचआई को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक है। पीयूष, क्या हमारी आवाज अब तक पहुंच रही है? बिल्कुल, अगर बात करें तो निश्चित रूप से पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं और कहीं न कहीं उन्होंने इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उनकी मुलाकात हुई। करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात चली और खासतौर पे उन चीजों को लेकर चर्चा हुई जिसमें खास अगर सड़क परिवहन के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो कई ऐसी परियोजनाएं हैं वो कहीं न कहीं अभी अधर में है, उसको किस तरीके से सुचारू रूप से चलाया जा सके, इसको लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी बाकायदा कहीं न कहीं आश्वासन दिया है। और कई महत्वपूर्ण दिन क्योंकि पंजाब में जब से भगवंत मान सरकार आई है, आपने देखा किस तरीके से चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या अन्य सेक्टर की बात करें, लगातार विकास हो रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं कल जो मुलाकात हुई है केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री से, काफी महत्वपूर्ण मुलाकात रही। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा हुई, सड़क को लेकर की जो पहले से भी कहीं न कहीं पेंडिंग पड़े हुए थे और उसको किस तरीके से उसमें और फंड दिया जा सके, इन तमाम विषयों को लेकर कहीं न कहीं काफी महत्वपूर्ण जो चर्चा है कल हुई है। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। पंजाब की सीएम भगवंत मान ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड से हिमाचल प्रदेश को पानी देने के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने हिमाचल को पानी देने पर एनओसी की शर्त हटाने का विरोध किया है। केंद्र सरकार ने बीते 15 मई को आदेश जारी कर एनओसी की शर्त हटाई थी। सीएम भगवंत मान ने अपने पत्र में लिखा है कि बीबीएमबी केवल एक प्रबंधन है जिसे केंद्र सरकार सीधे पानी देने का आदेश नहीं दे सकती है। उन्होंने लिखा कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड से पानी दिए जाने का पैमाना पहले से तय है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा बीबीएमबी को सीधे आदेश जारी करना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन बताया। बीबीएमबी में पंजाब का हिस्सा 55% और हरियाणा का 45% रहा है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि बीबीएमबी के लिए एक्स काडर बनने के बाद केंद्र सरकार मनमर्जी नहीं कर सकेगी, तो बीबीएमबी में पंजाब के हिस्से में आने वाले पदों पर राज्य से विमर्श किए बिना दूसरे राज्य के अधिकारी तैनाती किए जा रहे हैं, तो पंजाब के हिस्से आने वाले पदों को अनदेखा किया जाता है और प्रदेश का पक्ष रखने के लिए अधिकारी भी नहीं होते हैं। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने नंगल फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि नंगल फ्लाईओवर के निर्माण कार्य को 2 शिफ्ट में चलाया जाए। हरजोत बैंस पंजाब सिविल सचिवालय के नंगल फ्लाईओवर के निर्माण संबंधित साप्ताहिक प्रगति मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के दौरान पंजाब राज्य के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह
ईटीओ ने नंगल फ्लाईओवर के निर्माण के संबंध में कंपनी द्वारा अपनाए गए लचर प्रदर्शन के लिए कंपनी के अधिकारियों को फटकार लगाई और अधिकारियों को सख्त शब्दों में कहा कि यदि फ्लाईओवर निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा हो, निर्माण कार्य पूरा नहीं होने पर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में कंपनी को कोई टेंडर नहीं दिया जाएगा। हरभजन सिंह ने इस फ्लाईओवर के निर्माण की गंभीरता को देखते हुए 23 जून 2023 को अपने कार्यकाल में नंगल फ्लाईओवर की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक को पुनर्निर्धारित किया तो कैबिनेट मंत्री बैंस ने बैठक में उपस्थित एसडीएम मनीष राणा को निर्देश दिया कि नंगल शहर के सड़क के मरम्मत कार्य में भी तेजी लाई जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब के जीरकपुर शहर के सभी वार्डों में स्थित शमशान घाटों के सुधारीकरण पर 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी, जिसमें शमशान घाट की तरफ जाने वाली गली, बरामदे, शेड और चारदीवारी का काम किया जाएगा। अन्य कामों में शमशान घाट पर शवों को स्नान कराने के स्थान, अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों को रखने के लिए छांव के लिए टीन शेड लगाए जाएंगे। प्रार्थना सभा के साथ ही रोशनी आदि की व्यवस्था की जाएगी। लोगों के बैठने के लिए बेंच, लाइटिंग और पौधारोपण के अलावा साफ सफाई भी की जाएगी। इसके लिए नगर काउंसिल ने एस्टीमेट बनाकर काम शुरू करने की तैयारी कर ली है। तो वहीं शमशान घाट की सड़क बनाने के लिए 15,77,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। लुधियाना के न्यू राजगुरु नगर इलाके में सीएमएस कंपनी में हुई 8.49 करोड़ की लूट के मामले में लुधियाना पुलिस कमिश्नर मनदीप सिंह सिद्धू ने सख्त रवैया अपनाया। उन्होंने कंपनी के खिलाफ पत्र लिखा। उक्त पत्र में मुख्यमंत्री भगवंत मान और डीजीपी गौरव यादव को लिखा गया है, जिसमें उनसे कंपनी का लाइसेंस रद्द कराने की सिफारिश की गई है, क्योंकि इस मामले में लूट का कारण कंपनी का घटिया सिक्योरिटी सिस्टम था, जिसकी वजह से लुटेरों के लिए यह वारदात करना आसान हुआ। वहीं पुलिस की 10 टीमें ने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुल्लापुर, मंडियाड़ा और अन्य गांवों की झाड़ियों में सर्च ऑपरेशन चलाया। इसके अलावा महिला समेत 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया। बता दें कि न्यू राजगुरु नगर में एटीएम में कैश लोड करने वाली सीएमएस कंपनी के दफ्तर से 10 लुटेरे 8.49 करोड़ रुपए कैश वैन में भरकर फरार हो गए थे। वहीं हल्का डेरा बस्सी विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने बल्टाना के वार्ड नंबर 31 में आयोजित एक कार्यक्रम में वहां के निवासियों की समस्याएं सुनी, आश्वासन दिया कि समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस दौरान रंधावा ने कहा कि हमारी स्वच्छ राजनीति से प्रभावित होकर लोग हमसे जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब की आर्थिक स्थिति पटरी पर आई है। उनकी सरकार के अथक और ईमानदारी प्रयासों के फलस्वरूप राजस्व प्राप्ति में जोरदार इजाफा हुआ है और पंजाब वित्तीय घाटे से वित्तीय लाभ वाला राज्य बन गया है। बीते 1 वर्ष के दौरान जीएसटी, आबकारी, परिवहन और स्टैंप ड्यूटी के रूप में राजस्व में शानदार बढ़ोतरी हुई है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।